10 साल के बाद आपका सफलता का बेंचमार्क अलग हो जाता है. See, when you are at about, let's say 30, you are more looking at a BMW, you are looking at Zara, and you're looking at brands. जो बाहर की ट्रैपिंग्स होती हैं, बाहर की ट्रैपिंग्स मटेरियल होती है, और वो उस वक्त समझ में नहीं आता. आप उनको समझाओ तो उनको बात समझ नहीं आती. And today the brands are bombarding you, and we were possibly fortunate that we had very little options to buy from, and today you got so much of it. So आपकी जो तृप्ति जिसको बोलते हैं, हिंदी का जो वर्ड है, या कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं, आई थिंक दैट इज very important. People like us who inspire and we motivate people, we are driving 2 cars at the same time. On one hand, in one book I am saying that you go gung-ho, you go ahead and work hard and work hard and work hard. And also then my second book I am saying, pull back a little, pull back a little, pull back a little. Work-life balance, work-life balance. Don't neglect your wife, don't neglect your parents, don't neglect your health. So basically ये सारा कुछ मिला के it is the balancing act, right? That is what I would say is success. That if you can balance, that how much is too much? Where should I draw a line? This is a personal line, right? And normally when you get married, in this book Honeymoon with a Pinch of Salt, I am saying husband and wife का ये सांझा चूल्हा होता है, सांझा डिसीजन होता है कि हाँ भाई मेरे को 3 बेडरूम का मकान मिल गया है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, and I think it's okay. I don't want to get a heart attack. I don't want to die at the age of 40 is good enough. ये husband wife दोनों का सांझा decision होता है. So this is what I would say. Ultimately, success is to understand how much is too much, and can I do a balancing act that I don't go overboard this way. मैं इतना भी content ना हूँ कि मैं राख लगा के हिमालय पर्वत पे बैठ जाऊँ. वो एक गलत उदाहरण होता है. lot of people say I'll become a monk. It's good to read in a book that a chap has become a monk. It's okay, but can I become a monk? At least I would like to become a monk. But if I can remain a monk in Delhi and I can do my normal enjoyment, but एक particular limit तक. Talking of balance, Virender ji, I need to balance the program. Okay. I can't have too much of conversation without a break. I'm going to go in for a nice balanced break. You stay with us. मालती गुंधाय केश प्यारे गुगवारे, मुख दामिनी सिदाम कत चाल मतवारी, चाल मतवारी, चाल मतवारी. काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाई. क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ सिर्फ ₹1.5 के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा. वाओ! हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हरदम. लड़कों को कैसे करें इम्प्रेस? स्टाइलिश न्यू हेयरकट, एक्सपेंसिव ड्रेस, और बजट है कम, पॉकेट मनी ऑलमोस्ट खत्म. 5 रुपए है क्या? 5 रुपए में क्या होगा? 5 रुपए में अब मिलता है प्रिया गोल्ड बार बाइट बिस्किट. कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है. हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र कपूर से, जो एक इंस्पिरेशनल गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और एक राइटर है. वीरेंद्र जी, जुगाड़, इस पे आपने एक किताब लिखी है. ये शब्द हम लोग आम तौर पे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं. आपने जुगाड़ को कौन से लेंस से देखा है? I will say that how I thought of writing a book on जुगाड़. ये क्यों लिखी? जी, जब मैंने लीडरशिप की किताब जब मैंने खत्म करी, तो उसका जो लास्ट चैप्टर था, तो आई वाज सेइंग फाइनली एक लीडर को क्या होना चाहिए? A leader has to be a doer. He has to get the thing done, come what may. So 2 + 2 = 5. 2 और 2 5. 2 और 2 4 तो सब लोग कर लेते हैं. अब 2 लीडर का 2 और 2 5 करना. Now then I said 2 + 2 = 5, the great Indian जुगाड़. तो ये करके मैंने 4-5 पेज उसके ऊपर लिखे. सो मेरे पब्लिशर ने बोला कि सर इस पे किताब लिखो. I said, how can we write a book on जुगाड़? Let me think about it. But जब मैं इसके ऊपर सोचने लगा, तो 1-1.5 महीने के अंदर मेरे रिसर्च, और एक्चुअली इसके ऊपर कुछ था नहीं. There was no content on
जुगाड़ पर से, कोई पेपर नहीं लिखा हुआ, कोई पहले किताब नहीं लिखी हुई. So then I had to start everything from my heart and from my head and from almost a scratch. जब मैं लिखने लगा, then I realized कि इसके ऊपर तो बहुत कंटेंट है. And we are all Indians are all जुगाड़ूस. So I wanted to give it a management shape because जुगाड़ का, गौरव जी, there is a negative connotation also to it. Lot of people feel ये जुगाड़ू है. So this is basically an ethical जुगाड़. एंड जुगाड़ की दो मैनिफेस्टेशन होती हैं. एक होता है जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि इसका जो नाम बना था, ये पंजाब और हरियाणा में लोगों ने ट्रैक्टर बनाए थे कि वो चेसी किसी की पकड़ ली, स्टीयरिंग किसी का लगा लिया और एक ड्रम के अंदर आपने डीजल भर दिया और जो पानी वाला पंप है उसको लगा के आपने एक खटारा सा बना दिया, वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करा. उसका नाम रखा लोगों ने जुगाड़. नाउ एवरी मैनेजर मस्ट रीड दिस बुक एंड एवरी गाय हु वर्क्स मस्ट रीड दिस बुक because you have to be street smart, and not only in India, it's all across the world. Unless you are a smart guy, you know, they say work smart and don't work hard. I'm not saying that, but you work hard and you also know how to work smart. So jugaad becomes the highest form of emotional intelligence. It's like a Swiss knife, har marz ki dawa. Whether you call innovation, whether you call lateral thinking, whether you call creativity, whether you call contraption, hazir jawabi, this is all in one word. It is called जुगाड़. तो जुगाड़ की कोई एथिकल गाइडलाइंस है कि ये जुगाड़ नहीं, अब ये कुछ और बन रहा है? ये अंदर से, see again it comes to ethics. Now ethics is again very personal, right? कि ये मेरा ethical stance है, मैं इतना करूँगा और इसके आगे मैं ये नहीं करूँगा, right? So that is what is your personal call. But whatever I have given, there were 50 chapters. Each chapter is again very short and each one is a जुगाड़ by itself. It tells you. Like for example, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. This is a very old saying, but it works in your corporate life. There's sometimes you are stuck in a situation that अगर आप उसके सिर मारना शुरू करोगे, दीवार नहीं टूटेगी, आपका सिर टूट जाएगा. So it is better कि उससे सिर मत मारो, दरवाजा ढूंढो, बाहर निकलो कमरे से. कभी तो हम बोलते हैं कि be true to yourself. Right. Be true to yourself. And sometimes when you're applying जुगाड़, then you're really not being true to yourself. No, you will apply only that जुगाड़ where you feel you are true to yourself. There's some people in my book, some of the guys will say, I disagree with this. That's your call. As an author, I have presented my ideas. And let's say there are 50 ideas I have presented, जुगाड़ू ideas. And आपको 40 उसमें ठीक लगते हैं. ये बोलते हैं 10 में कोई सूट नहीं करते, तो छोड़ दो. So see what works for you. What works for you and what you feel I don't want to apply. I'll give an example. People go to a restaurant and every time it's a fashion to give tip. Tip का मतलब क्या होता है? Tip means, is it bakshish? That means you done a good job for me. Why should I pay a tip only after the service has been done? I can go to a bar or I can go to a restaurant. I have invited 20 people for dinner or lunch. I go to the head waiter, give him 500 rupees which I was supposed to give after that. And I'll tell him, bhai, look after my guests. So what do you think it's unethical? No, because मैं 500 रुपए बाद में देने थे. आई थिंक जीवन में यही स्ट्रगल रहती है कि इज एवरीथिंग अ गेम. ये सब हार जीत की बात ही है कि कोई जीतेगा तो कोई हारेगा. See, game must be played. The point is that हारना जीतना important है. I am not saying कि you play a game just for the heck of it. But अगर आप हार जाते हो और हार, इसी ये पूरी जो जिंदगी है इसमें everybody has lot of rejections and lot of failures. And idea is to take the failures in your stride and move on. अगर आप उसको फेलियर को लेके बैठ जाते हो, अब कितने कितने दिग्गज एक्टर्स हैं who have flopped also, they bounce back. So this is again bouncing back after a failure is very very important. तो जो आपने ये जो चीज़ पूछी है मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन उसका करके बता रहा हूँ कि you know failures are a part of life and it's not that you play a game only to win, but you also can't play a game only to just play a game. That is one. Again यहाँ balancing act आता है कि you know मैं कितना पुश करूँ, पुश जरूर करो, बिकॉज अगर आपने पूरा जान नहीं लगाई गेम में तो आपको रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि यार आई कुड हैव प्लेड बेटर देन दिस. दैट्स व्हाट यू शुड नेवर हैव. बट यू गिवन योर बेस्ट शॉट. आफ्टर दैट इफ यू नॉट won the gold cup, good enough, so be it, try the next time. I think that's how you have to look at life. फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, कोई काम किया, पूरी शिद्दत
मोहब्बत के साथ किया, हाँ। ठीक नहीं हुआ, तो व्हाट आर द क्वालिटीज, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको उसमें से निकाल के बाहर फिर से लड़ने के लिए तैयार Very, करती हैं? very, very difficult. This is again something like a trait. One is like people have, and I think यहाँ पे जो molding है ये बचपन से होती है. You know, parents का बहुत बड़ा रोल है. Lot of people are putting everything back onto the education system, which I don't agree. जो पेरेंट्स जो आपको सिखलाई देते हैं घर में, या घर में जो वैल्यू सिस्टम आपके पास आता है, या घर में जो बताया जाता है, बेटा कोई बात नहीं, एक बार हार गए दोबारा खेलो. माँ बाप जो है, दे आर द बिगेस्ट गाइड्स. माँ बाप जो हैं वो सबसे अच्छे आपके, आई विल नॉट यूज द वर्ड फ्रेंड्स विच इज नॉट यूज नॉर्मल इन अ करेक्ट कॉन्टेक्स्ट. पेरेंट्स आर योर बेसिकली गाइड्स, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस. points of reference. They tell you कि बेटा ये ठीक है. And when they say they see their own father, their mother going through struggle, अगर 30% टीचर्स की और स्कूल के एनवायरनमेंट की जिम्मेवारी है बच्चे को ये बाउंसिंग बैक आफ्टर फेलियर सिखाने की, तो 70% पेरेंट्स की है. बच्चा 8 घंटे स्कूल में बिताता है, 14 घंटे होते हैं, 24 में से उसने 16 घंटे तो घर में निकाले, तो दैट इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस. सो वहाँ पे से आपकी जो है सिखलाई होती है कि यस यू कैन टेक अ फेलियर. एंड और आजकल माँ बाप भी कुछ ज़्यादा पुश कर रहे हैं पेरेंट्स को. यू नो, दे कीप सेइंग कि मैं अपने बच्चे को यही बनाना चाहता हूँ, या आई वांट हिम टू डू वेरी वेल. पुश देम बट नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट, एंड दे विल बी हैप्पी दैट इफ माई चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेरी वेल इन एकेडमिक्स. आई थिंक दैट्स द बेसिक पुश. मोस्ट ऑफ द किड्स आर, मेरा बच्चा जो है सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, IIT भी क्रैक कर ले, IIM भी चला जाए. सो व्हाट, ओनली 10,000 people will go into that strata of, you know, effectiveness, or let's say that those colleges. Everybody can't go to Stephens, everybody cannot go to SRCC, everybody can't go to an IIM, but then life does not end there. There are people who have not gone to IITs and IIMs and they're performing hugely well today. Absolutely. And आजकल जो entrepreneur का जो शुरुआत हुई है, that people are leaving well paid jobs and starting their own businesses and doing pretty well and doing something which is they are passionate about, which they like to do. कहीं कहीं अपने खुद के पैशन को डिस्कवर करने के लिए भी सालों साल लग जाते हैं. एंड पैशन, एज यू रिटन एंड यू आल्सो से, प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई थिंक बिफोर वी मूव टू द रोल ऑफ पैशन, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, हाउ डू वी गेट टू लिसन टू आवर पैशन? पैशन का एक, इसके मेरे 4 बेसिक नुएंसेस हैं, जिससे कि आप एक पैशन के बारे में अपना पैशन को साउंड बोर्ड कर सकते हो कि ये मेरा पैशन है. समटाइम्स वी आर इन लव विद अ वर्ड, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और जब मैं बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, तो मैं बोलता हूँ गलत जगह में आ गया, ये तो आई वॉज इन लव विद द नेम ओनली, नॉट विद द कंटेंट. सो यू हैव टू साउंड बोर्ड अ लिटिल. आई गिव यू एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल. लेट अस से यू आर एन इंजीनियर, यू वर्किंग फॉर अ कंपनी, आपकी रोजी रोटी से चल रही है, एंड यू आर ऑल्सो पेंटर. आपने पेंटिंग करनी शुरू करी तो आपने 25-30 पेंटिंग्स बना ली. जी. तो एक दिन आपके घर आपका एक कोई फ्रेंड आया, उसने वो पेंटिंग्स देखी, उसने बोला ये गौरा है तो बड़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं, आप वो यार एग्जीबिशन क्यों लगाते हो? तो ये बोलते एग्जीबिशन और मैं, तो आपकी कभी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं एग्जीबिशन कर सकती हूँ. फिर आपने GK 2 में जाके अपने 25 पेंटिंग्स लगाई, खर्चा आपका हो गया 6,000. अच्छा, भूले बैठ के 2-4 लोग आए और आपकी 4 पेंटिंग्स बिक गई और आपने करीब 6 या 7 हज़ार रुपये कमा लिए. सस्ती बिक गई पेंटिंग्स. 2 चीज़ें हुई. एक तो ये कि यार लोग मेरी पेंटिंग्स खरीदते हैं, दैट मीन्स मेरे को पेंटिंग थोड़ी बहुत आती है. जी. हाँ, और मैंने कितना खर्चे किए थे? 5,000 खर्च किया था, चलो यार 7,000 मेरी जेब में आ गए, थोड़ी हिम्मत आ गई. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं छुट्टी, अब गौरा जब छुट्टी लेती है 1 महीने की जो पेड लीव है, लेट्स से यू वर्किंग समवेयर, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गो एंड फ्रीकिंग आउट, यू से यार अब मैं घर में बैठ के पेंटिंग्स बनाती हूँ. अच्छा, दूसरी चीज़ एक और वैलिडेट होगी कि लोगों को मेरा क्या पसंद आया. आपने हॉर्सेस बनाए, आपने रोजेस बनाए, आपने लैंडस्केप्स बनाए, आपके सारे हॉर्सेस बिक गए, तो उसका मतलब मेरा हुआ हॉर्स में है. तो आई शुड कॉन्सेंट्रेट, लाइक MF हुसैन साहब थे जो वो हॉर्सेस में काफ़ी स्पेशलाइज करते थे. तो आपको ये एक साउंड बोर्डिंग हो गई. नेक्स्ट टाइम आपने किया 50 पेंटिंग बनाई, फिर आपने किसी को रिंग किया, यार बताओ कोई तरीका है. फिर आपने एक और छोटी सी एग्जीबिशन करी, आपने 40-50 हज़ार रुपये कमा लिए.
देन यू गिव अ कॉल टू बॉम्बे। एक काला घोड़ा में एक जहांगीर आर्ट गैलरी है, आपने जहांगीर आर्ट गैलरी के अंदर जा कर के अपनी 50 पेंटिंग्स जो आपने 1.5 साल